Hello students, welcome to the AKTU lectures. This is lecture number 4 for the subject Industrial Pharmacy, subject code BP502T. So in this lecture, we are going to discuss about the powder flow properties. In the last lecture, we have discussed about the solubility analysis. We have seen what are the different characteristics on the basis of which we can increase the solubility. So we have focused on the pH, pKa, co-solvent, then partition coefficient. So all these parameters we have studied in the last lecture. So in this lecture, we will discuss about the powder flow property. So we will discuss about the different characteristic of the powder, why this powder flow property is important. Next, bulk density, tap density, angle of repose, compressibility and hygroscopicity. Here we will also focus on Carr's index and Hausner's ratio. So these two topics also we are going to study in this lecture. Powder flow characteristic. So first of all, we should know what is a powder. So powder is the mass of solid particles. It is the mass of solid particles or the granules which helps in the development of the tablet or granules or the capsule. So this powder is an important substance which helps in the development of the tablet. So when we follow the tablet operation, when we see the tablet operation, so various mechanisms are there or various machineries are there where powder flow property plays an important role. So we have to first understand then what is the importance of powder flow characteristic. So a good flow of the powder or granulation is necessary for first efficient mixing. So what is efficient mixing? Suppose you are making a tablet, you are using different excipient, diluent, disintegrant, lubricant, glidant, drug. You have to mix all the ingredient. So if the flow of the property will not be efficient, the mixing will not take place properly and uniformity will not be obtained. So this is most important. Mixing step is most important. Second is weight uniformity. Now as you know that tablet is a unit dosage form. Tablet क्या है? एक unit dosage form है. तो यूनिट डोजेस फॉर्म क्या होता है? जहाँ पे आप स्ट्रिप से एक सिंगल टैबलेट कंज्यूम कर सकते हो. जो भी क्लेम होता है लेबल में, दैट इज सपोज 500 mg. सो ईच यूनिट इन अ टैबलेट कंसिस्ट ऑफ 500 mg. सो दिस इज यूनिट डोजेस फॉर्म. तो वेट यूनिफॉर्मिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग अ सिंगल टैबलेट और सिंगल टैबलेट में देयर शुड बी सपोज 500 mg because this 500 mg is required for showing the pharmacological effect. जो भी pharmacological effect चाहिए है किसी भी treatment of disease या फिर disease के लिए, तो आपको 500 mg उस टाइम आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है. तो 500 mg आपकी बॉडी में देना कंपल्सरी होता है. सो दिस यूनिट डोजेस फॉर्म्स टेल्स दैट इट शुड कंटेन 500 mg इन अ सिंगल यूनिट. सो वेट यूनिफॉर्मिटी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप जो बल्क बना रहे हो, आप जो पाउडर बना रहे हो, जो मास बना रहे हो, उस मास को यूज करके जो आप टैबलेट फॉर्मुलेट कर रहे हो, तो उस टैबलेट फॉर्मुलेशन में सिंगल यूनिट शुड कंटेन 500 mg. दैट इज अ वेट यूनिफॉर्मिटी. अगर पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी ठीक नहीं हुई तो डिस्ट्रीब्यूशन इवनली नहीं होगा और इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने के कारण आपकी वेट यूनिफॉर्मिटी ऑब्टेन नहीं होगी. सो दैट इज व्हाई जो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी है इट शुड बी डिटरमाइंड एंड इट शुड बी सीन. अगर पाउडर फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है तो किस तरीके से वो फ्लो हो रहा है उसको एनालाइज करना कंपलसरी है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में एंड किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पाउडर. नाउ एज यू नो डैट कि जब भी हम
डोजेस फॉर्म डेवलप करते हैं, उसमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज करने हैं, देन वी आर गोइंग फॉर द स्केल अप प्रोसेस. सो अगर हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी स्किप कर दें एंड वी डायरेक्टली गो टू द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, एंड वहां पे हमें डिटेक्ट हुए कि दैट पाउडर इज हैविंग अ फ्लो प्रॉपर्टी इशू, इट इज हैविंग द फ्लो इशू, तो वहां पे आपकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होगी एंड देयर यू विल फेस अ लॉस, बिकॉज यू नो दैट कि आपका जो टैबलेट प्रोडक्शन होता है कितना एक्सपेंसिव होता है, कितने सारे एक्सिपिएंट यूज होते हैं, मोर ओवर कितने सारे लेबर्स रहते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, एंड देयर इफ you are experiencing any issue, then it is a great loss. So उस लॉस से बचने के लिए हमें पहले ही डिटरमाइन करना होता है कि हमारे पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी क्या है. तो पाउडर फ्लो पैरामीटर्स अफेक्टिंग द फिजिकल पैरामीटर्स विच आर अफेक्टिंग द पाउडर फ्लो. तो फर्स्ट इज साइज. साइज ऑफ एनी ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पार्टिकल्स के साइज लार्ज हुए एंड यूनिफॉर्म नहीं हुए, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू फ्लो, इट विल नॉट फ्लो यूनिफॉर्मली, क्योंकि टैबलेट प्रोड्यूस करने के लिए यू हैव अ डाई पंच मशीन जिसमें आपके हॉपर से होते हुए पाउडर फ्लो होके डाई कैविटी में एंटर होता है. तो अगर हॉपर से जब वो फ्लो हो रहा है वहां पे आपके पार्टिकल का साइज इंक्रीज हुआ तो आपका यूनिफॉर्म फ्लो नहीं होगा, जिससे आपकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी. सो दैट इज वाई आपके पार्टिकल का साइज लेस होना चाहिए, जिससे आपकी फ्लो प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट होता है शेप. शेप ऑफ द ड्रग शुड बी स्पेरिकल. शेप ऑफ द ड्रग शुड बी स्पेरिकल. अगर ये स्पेरिकल शेप होते हैं, सपोज इट इज फ्लोइंग फ्रॉम द हॉपर एंड दिस इज स्पेरिकल इन शेप, तो इट कैन इजिली फ्लो. बट अगर ये किसी और शेप के होंगे या फिर इरेगुलर होंगे तो फ्लो प्रॉपर्टी कैन बी अफेक्टेड. सो ऑलवेज इट इज प्रेफरेबल कि आप जो शेप है वो कैसा शेप रखो, इट शुड बी स्पेरिकल इन शेप. नेक्स्ट आता है आपका एंगुलैरिटी. आपका ड्रग किस एंगल से फ्लो करता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जो डिसाइड करता है कि यू आर हैविंग अ गुड फ्लो और यू आर नॉट हैविंग अ गुड फ्लो. सो एंगुलैरिटी ऑफ द ड्रग शुड बी डिटरमाइंड वेरी केयरफुली. नेक्स्ट है पार्टिकल डेंसिटी. पार्टिकल डेंसिटी बताता है कि हाउ मच पार्टिकल्स आर डेंसली पैक्ड. अगर डेंसली पैक्ड होते हैं तो फ्लो प्रॉपर्टी हिंडर करते हैं, दैट इज व्हाई इट शुड बी फ्रीली फ्लोइंग. नेक्स्ट कम हार्डनेस. अगर पाउडर आपका हार्ड होता है देन उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अफेक्ट होती है एंड दिस रिजल्ट्स इन द हार्ड टैबलेट. तो हार्ड टैबलेट अगर आप लेते हो तो इट हेल्प्स इन द डिक्रीज एब्जॉर्प्शन एंड डिसोल्यूशन, क्योंकि हार्डनेस इंक्रीज होने के कारण डिसोल्यूशन नहीं होता है, एंड डिसोल्यूशन नहीं होता है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग हिंडर करता है. तो दैट इज व्हाई आपकी हार्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. नेक्स्ट है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस. आपको पता है कि आपके जो ड्रग्स होते हैं तो ड्रग्स में चार्जेस होते हैं, उसके सरफेस में चार्जेस होते हैं, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. तो वो सारे चार्जेस आपके पार्टिकल के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. तो ये जो चार्जेस होते हैं, अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हुआ, तो ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है ये पार्टिकल का एग्लोमरेशन कॉज करेगा. व्हाई? बिकॉज पार्टिकल्स विल अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड दिस विल अफेक्ट द फ्लो प्रॉपर्टी. सो अगर दूसरा नेगेटिव चार्जेस हुए या पॉजिटिव चार्ज हुए तो दो पार्टिकल्स को वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे. सो two particles can move freely from the hopper machine. So therefore electrostatic charges plays the important role. Next है absorbed moisture. अगर आपके ड्रग में मॉइस्चर प्रेजेंट है तो मॉइस्चर क्या करेगा, जो डाई वॉल्स हैं या फिर हॉपर की जो वॉल है उससे स्टिक हो जाएगा और उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो अफेक्ट हो जाएगी. तो आपके जो पाउडर है इट शुड बी इन अ वेल ड्राई स्टेट. ये कैसा होना चाहिए, इट शुड बी प्रेजेंट इन अ वेल ड्राई स्टेट. So these are the different physical parameters which affect the flow property of the powder. Next है powder flow property. Powder flow property can be determined by bulk density,
tap density, true density, angle of repose, Carr's index and Hausner's ratio. First is bulk density. So bulk density determines the bulk of the drug. And why it is important? It is important to determine the high dose capsule product. High dose capsule product means if you want to insert a high dose into the capsule, so you should know that how much is the compactability of your powder, so that it can be easily filled inside the capsule and it can be fit easily. So the high dose capsule को अगर आपको डिलीवर करना है तो उसके लिए bulk density पता होना कंपलसरी है. नेक्स्ट है homogeneity of a low dose formulation. लो डोज क्या होते हैं? पोटेंट ड्रग्स विच आर गिवन इन वेरी लेस क्वांटिटी. तो ये जो ड्रग्स होते हैं पोटेंट ड्रग्स, उसको मिक्स होना दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत कंपलसरी होता है. तो अगर आपको नहीं पता होगा व्हाट इज द बल्क डेंसिटी ऑफ योर ड्रग, तो हाउ यू विल मिक्स इट विद द अदर एक्सिपिएंट. सो दैट इज व्हाई टू produce the uniformity in mixing, you should know the bulk density of your potent drug. Next is final size of the dosage form. Final size of the dosage form. जब आप dosage form complete करते हो तो next steps comes is पैकेजिंग. तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना बल्क है ड्रग का, जिसके बेसिस में आप कितने क्वांटिटी पैकेजिंग की एक्वायर कर सकते हो फॉर complete and successful packaging of the dosage form. So that is why final size पता होना चाहिए जिससे आप उसकी पैकेजिंग को अच्छे से डिफाइन कर सको, डिटरमाइन कर सको. So this is why bulk density is very important. Next is how we can measure the bulk density. तो bulk density measure करने के लिए आपको हमेशा you need to take a measuring cylinder. Measuring cylinder में you need to pour the drug. आप ड्रग को इसमें pour कर दो. तो and after pouring the drug you need to calculate the weight and you need to calculate the volume. What is density? Density is equal to mass upon volume. तो आप यहाँ से weight, that is mass, and volume आप डिटरमाइन कर लो. तो वॉल्यूम डिटरमाइन करके आप इसकी डेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हो. तो व्हाट इज बल्क डेंसिटी? इट इज द डेंसिटी विच इज पोर्ड इन द सिलेंडर, एंड जैसे ही आप उसमें पोर करो जो भी उसका वॉल्यूम आता है दैट गिव्स द बल्क डेंसिटी. तो जहाँ पे जो भी वॉल्यूम आएगा आप उस वॉल्यूम को नोट करोगे एंड इस वॉल्यूम की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे वो आपकी बल्क डेंसिटी डिटरमाइन करेगा. सो द वेट पाउडर सैंपल इज पोर्ड इनटू द मेजरिंग सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ द सैंपल इज मेजर्ड फ्रॉम द मार्क ऑफ द सिलेंडर. मार्क ऑफ द सिलेंडर है वो वॉल्यूम डिटरमाइन करेगा जिससे आप बल्क डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो. नेक्स्ट आता है आपका टैप डेंसिटी. टैप डेंसिटी क्या होता है? इट इज मेजर्ड बाय टैप्ड वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द सैंपल. नाउ व्हाट इज टैप? आपने मेजरिंग सिलेंडर लिया, यू हैव टेकन अ मेजरिंग सिलेंडर, एंड इस मेजरिंग सिलेंडर में आपने ड्रग को क्या किया? पोर किया. ड्रग को पोर करने के बाद सपोज दिस इज योर वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम यू अचीव्ड. इसके बाद आपको क्या करना है? टैप करना है. टैप एक इंस्ट्रूमेंट होता है डेंसियोमीटर करके, तो उसमें आप क्या करते हो? इस वॉल्यूम को टैप करते हो 100 टाइम्स. 100 टाइम्स आप मेजरिंग सिलेंडर को उस इंस्ट्रूमेंट में रख के टैप करते हो. यू गिव अ प्रेशर सो दैट जो भी यहाँ पे एयर स्पेस है वो रिमूव हो जाए और आपका ड्रग कॉम्पैक्ट हो जाए. तो 100 टाइम्स टैप करने के बाद जो भी वॉल्यूम निकलता है आप उसको मेजर करते हो. सपोज 100 टाइम्स टैप करने के बाद आपका वॉल्यूम ये आया. दिस इज द वॉल्यूम यू हैव अचीव्ड. तो दिस इज सपोज वी आर टेकिंग इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज फाइनल वॉल्यूम. ठीक है, ये क्या है? फाइनल वॉल्यूम है. तो ये जो फाइनल वॉल्यूम है आप इसको मेजर करोगे. तो डेंसिटी क्या होती है? टैप डेंसिटी. टैप डेंसिटी इज इक्वल टू टैप्ड वॉल्यूम. इस टैप्ड वॉल्यूम में आप क्या वैल्यू रखोगे? दिस इज फाइनल वैल्यू एंड वेट ऑफ द सैंपल. सो दिस विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द टैप्ड.
So tap density can be calculated. इसका मेथड वही है, you need to take the measuring cylinder. measuring cylinder लेने के बाद आप उसमें पाउडर को पोर करोगे. पोर करने के बाद you will tap it with the help of densiometer. densiometer में टैप करोगे 100 times and you will measure the volume. This is how you can measure the tap volume. Next आता है angle of repose. एंगल ऑफ रिपोज हम कैसे मेजर कर सकते हैं? एंगल ऑफ रिपोज सबसे पहले होता क्या है? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सो एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द पाइल ऑफ द पाउडर एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस. उससे जो भी एंगल निकलता है आप उससे एंगल ऑफ रिपोज को फॉर्म कर सकते हो. सपोज दिस इज द फनल. आपको इसमें एक फनल लेना पड़ता है एंड इस फनल से पाउडर को क्या करना होता है? पास कराना होता है. तो पाउडर पास होता है जैसे, तो यहाँ पे आपका एक ग्राफ पेपर रखा होता है. ग्राफ पेपर में ये पाउडर गिर के एक पाइल बनाता है. ये जो हीप फॉर्म हो रहा है दैट इज नोन एज पाइल. इसको आप क्या बोलते हो? पाइल. तो ये जो पाइल फॉर्मेशन होता है आप इसकी हाइट मेजर करते हो कि कितने हाइट पे ये फॉर्म हो रहा है. ठीक है. एंड फिर आप इसका पेपर लेते हो जो आपने ग्राफ पेपर लिया है और इसमें इस पाइल को हटाने से पहले यू मेक अ सर्कल अराउंड द पाइल. तो ये सर्कल ऐसे निकल के आता है. ये जो बेस होता है पाइल का, इसका सर्कल आप लेते हो. देन यू मेक अ राउंड सर्कल. इस सर्कल का आप क्या मेजर करते हो? यू मेजर द डायामीटर. तो आपके पास एक हाइट आ गया है, दूसरा यू हैव द डायामीटर. तो व्हाट एंगल ऑफ रिपोज इज सेम? एंगल ऑफ रिपोज होता है मैक्सिमम एंगल विच इज फॉर्म्ड बाय द सरफेस ऑफ द पाइल. ये क्या है? सरफेस ऑफ द पाइल. एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये है आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो ये जो सरफेस ऑफ द पाइल है और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल होता है आपका एंगल ऑफ रिपोज. क्या होता है ये आपका? एंगल ऑफ रिपोज. सो दिस एंगल आप कैसे उसको डिटरमाइन करते हो, मैंने आपको वो मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. ओके. सो एंगल ऑफ रिपोज इज ऑलवेज गिवन बाय अ tan थीटा. सो tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन r. डायमीटर आपको वहां पे मिल गया था. डायमीटर इज इक्वल टू 2r. 2r इस वैल्यू से आप डिटरमाइन कर सकते हो आपका रेडियस क्या है. इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे एंड यू कैन कैलकुलेट tan theta. h is the height of the pile and r is the base of the pile. So this will help you to determine the angle of repose. जो angle of repose है वो ये बताता है कि कितना efficiently your powder is flowing from the funnel and what is the angle. हम आगे अभी टेबल देखेंगे कमिंग साइड में कि व्हाट इज द एंगल दैट इज द बेस्ट फॉर द फ्लो ऑफ द पाउडर. नेक्स्ट आता है कार्स रेशियो, कार्स इंडेक्स एंड हॉसनर्स रेशियो. दिस इज इंडेक्स. कार्स इंडेक्स एंड हॉसनर्स रेशियो. सो कार्स इंडेक्स एंड हॉसनर्स रेशियो भी आपका फ्लोएबिलिटी ऑफ द पाउडर को डिटरमाइन करता है. So what is the formula to calculate the Carr's index? Carr's index is the tap density minus bulk density. हमने ऊपर वाली स्लाइड में tap density and bulk density को कैलकुलेट करना सीखा था. तो फर्स्ट यू विल टेक द tap density. tap density को हम bulk density से सब्ट्रैक्ट करेंगे divided by tap density into 100. So this is the formula for calculating the Carr's index. Hausner's ratio क्या होता है? रेशियो ऑफ टैप डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी. इसके रेशियो से आप हॉसनर्स रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो. सो दिस इज द टेबल विच टेल्स यू about the angle of repose and Carr's index. So you can see excellent. Excellent कब होता है? When your angle is 25, less than 25. You can say your powder flow is excellent. हम क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहले we are talking about the angle of repose. हम good कब बोलेंगे? When your
द एंगल इज बिटवीन 25 एंड 30. हम फेयर टू पासिबल कब बोलेंगे? जब योर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज 30 to 40. And when we will say poor, when your angle is more than 40. More than 40 रहा आपका एंगल तो it is very poor flow. And excellent flow कब होगा? जब आपका angle of repose less than 25 होगा. Next is Carr's index. Carr's index की वैल्यू excellent कब होगी? जब it is 5 to 15%. Next it is good कब होगी? Between 12 to 6. नेक्स्ट फेयर टू पासिबल कब होगी? 18 to 12. पुअर कब होगी? 23 से 25. एंड वेरी पुअर कब होगी? 33 से 38. और एक्सट्रीमली पुअर जब आपके 40 से अबव इसका वैल्यू आता है तो वो आप कंसीडर करोगे कि पाउडर का फ्लो वेरी पुअर है. नेक्स्ट आता है कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? एंड कॉम्पैक्टिबिलिटी. इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि कंप्रेसिबिलिटी कब बोलते हैं एंड कॉम्पैक्टिबिलिटी कब बोलते हैं. तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? जब आप पाउडर को कंप्रेस करते हो, जो भी पाउडर के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में जो भी एयर स्पेस होता है या एयर वॉइड्स होता है, आप क्या करते हो? उसे कंप्रेस करते हो. कैसे कंप्रेस करते हो? आप फोर्स लगाते हो. तो इस फोर्स से क्या होता है? ये फोर्स आपके जो भी एयर वॉइड्स है उसको रिमूव करता है. इट रिमूव्स द एयर वॉइड्स. और एयर वॉइड्स को रिमूव करके इसे क्या करता है? कंप्रेस्ड फॉर्म में करता है. जो भी पार्टिकल्स हैं उसके बीच से जो एयर है वो रिमूव हो जाती है और ये कंप्रेस्ड फॉर्म में आ जाती है. जो भी एयर है इट गेट्स रिमूव्ड एंड इट comes into the compressed form. So here you can see that compressibility क्या होता है? पाउडर की प्रॉपर्टी होती है जो एबिलिटी टू डिक्रीज द वॉल्यूम अंडर प्रेशर. मतलब आप फोर्स लगा रहे हो, एयर वॉइड्स आपके रिमूव हो रहे हैं, उससे आपका पार्टिकल क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है. तो दिस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी. नेक्स्ट आता है कॉम्पैक्टिबिलिटी. कॉम्पैक्टिबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी of the powder material to be compressed in a tablet of specified tensile strength. तो जब भी आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी होती है आपके टैबलेट की तो आप उसे कॉम्पैक्ट करते हो. यू कॉम्पैक्ट इट. आप कॉम्पैक्शन अप्लाई करते हो, उससे आपकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट आता है हाइग्रोस्कोपिसिटी. हाइग्रोस्कोपिसिटी आपके पाउडर का मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. तो काफ़ी सारे कंपाउंड्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं मॉइस्चर के लिए एंड डिफरेंट कंपाउंड्स जो भी सॉल्ट्स होते हैं वो मॉइस्चर के लिए सेंसिटिव होते हैं. तो मॉइस्चर की प्रेजेंस से वो क्या करते हैं? या तो डेलिक्विसेंट बन जाते हैं या फिर हाइग्रोस्कोपिक बन जाते हैं. डेलिक्विसेंट क्या होते हैं? जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. या फिर हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं? जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके वेट मास बनाते हैं. तो अगर आपने प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में ये डिटरमाइन नहीं किया कि आपके पाउडर की जो प्रॉपर्टी है क्या है, वेदर इट इज हाइग्रोस्कोपिक और नॉट, तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं. तो इसलिए हमें पाउडर की जो हाइग्रोस्कोपिसिटी है उसको डिटरमाइन करना काफ़ी कंपलसरी होता है. इट इज़ वेरी नेसेसरी. सो मॉइस्चर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग. सॉरी, जो भी ड्रग की स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है अगर आपका ड्रग मॉइस्चर गेन कर ले. सपोज फॉर एग्जांपल आपने टैबलेट बनाया तो टैबलेट आपका मैन्युफैक्चर हुआ, अब उसने मॉइस्चर गेन कर लिया तो इट विल बी इनइफेक्टिव. क्योंकि आप मॉइस्चर गेन टैबलेट में जो भी ड्रग प्रेजेंट है तो मॉइस्चर के कारण वो ड्रग डिग्रेड हो जाएगा और इस तरीके के ड्रग को अगर आप लेते हैं तो इट विल नॉट बी फार्माकोलॉजिकली इफेक्टिव. तो जो भी अभी तक हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, जो भी हमने फ्लो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी या फिर एंगल ऑफ रिपोज, कार्स इंडेक्स, ये बेसिकली आपके फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रही है. किसको डिफाइन कर रही है? इट इज डिफाइनिंग द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कब काम आता है? व्हेन यू आर मैन्युफैक्चरिंग द
टैबलेट, जब भी आप टैबलेट को बना रहे हो उसमें ये वर्क करता है, क्योंकि टैबलेट को किससे मूव करना होता है, इट हैज़ टू मूव टू द हॉपर, हॉपर से मूव होके इट हैज़ टू रीच टू द डाई कैविटी, डाई कैविटी में पंचेस लगे होते हैं, तो पंचेस क्या करते हैं, उसे पंच करते हैं, तो जो पाउडर्स हैं वो फ्लो होके आपके डाई कैविटी में मूव हो रहे हैं। तो अगर फ्लो प्रॉपर्टी आपकी इफिशिएंट नहीं होगी तो क्या होगा, आपके पाउडर में यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, व्हाट विल नॉट कम, यूनिफॉर्मिटी विल नॉट बी अचीव्ड, आपके जो भी ड्रग है इट विल नॉट बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मोर ओवर आपके मॉइस्चर प्रेजेंट होने के कारण आपकी जो टैबलेट है वो सॉफ्ट भी प्रिपेयर हो सकती है, मॉइस्चर प्रेजेंट होने के कारण वो डिग्रेड भी हो सकती है। So these are the different issues which we face while developing the tablet. So that is why जब भी हम pre-formulation studies करते हैं तो pre-formulation studies में we used to determine the flow property. So in this slide we have seen the various flow properties. We have also seen the importance ऑफ फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स कि कब कब आपका फ्लो कैरेक्टरिस्टिक इम्पॉर्टेंट होता है, इसका व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स, क्या क्या डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज एंड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स को हमेशा एक साथ स्टडी किया जाता है, पार्टिकल साइज को हमेशा हमें रिड्यूस फॉर्म में ही यूज करना होता है, जिससे आपके टैबलेट की या ग्रैन्यूल्स की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड हो या फिर जो भी आप डोजेस फॉर्म बना रहे हो उसमें ड्रग का कंटेंट यूनिफॉर्म हो। सो दैट इज वाई ये जो साइज होता है ये साइज आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है शेप, शेप जो होता है शेप इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी किए थे वन वन करके जो आपके पाउडर की फ्लो के प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज क्या क्या थे, जैसे बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी, एंगल ऑफ रिपोज, कार्स इंडेक्स एंड हॉस्टनेस रेशियो। हमने ये सारे प्रॉपर्टीज डीपली स्टडी किए। डीपली स्टडी करने के बाद वी हैव ऑल्सो सीन कि क्या क्या मेथड्स थे जिससे हम ये सारे पैरामीटर्स डिटरमाइन करते थे। हमने डायग्राम के थ्रू भी समझा कि बल्क डेंसिटी किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, टैप डेंसिटी कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। एक टैप डेंसिटी होती है, दिस आई विल एक्सप्लेन यू। टैप डेंसिटी क्या होती है, जो एक्चुअल डेंसिटी प्रेजेंट होती है, एक्चुअल डेंसिटी जो प्रेजेंट होती है ऑफ द पाउडर, उसको हम बोलते हैं आपकी ट्रू डेंसिटी। दिस इज नोन एज ट्रू डेंसिटी। नेक्स्ट आती है ग्रैन्युअल डेंसिटी, वन मोर डेंसिटी इज देयर दैट इज नोन एज ग्रैन्युअल डेंसिटी। तो ग्रैन्युअल डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द ग्रैन्यूल्स, डेंसिटी ऑफ ग्रैन्यूल्स। आप जो मेजरिंग सिलेंडर है उसमें आप ग्रैन्यूल्स को पोर करते हो, यू पोर द ग्रैन्यूल्स एंड यू डिटरमाइन द डेंसिटी। तो आप ग्रैन्यूल्स को पोर करके उसका वॉल्यूम डिटरमाइन करते हो एंड यू डिटरमाइन द वेट। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो मास है आप यहाँ पुट करोगे और यहाँ पे यू विल पुट द वॉल्यूम। सो दिस हेल्प्स टू डिटरमाइन द ग्रैन्युअल डेंसिटी। नेक्स्ट हमने एंगल ऑफ रिपोज, कार्स इंडेक्स एंड हॉस्टनेस रेशियो भी डिटेल में स्टडी किया था। देन वी हैव स्टडीड द बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी का क्या यूज होता है, किस लिए यूज होती है, मेनली बल्क डेंसिटी का यूज होता है फाइनल साइज डिटरमाइन करने के लिए एंड होमोजेनिटी मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट होता है मेजरमेंट ऑफ बल्क डेंसिटी, ये भी हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था। टैप डेंसिटी हमने डायग्राम के थ्रू समझा था किस तरीके से हमने डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टैप डेंसिटी, ये मेथड है उसका डिटरमाइन करने का। एंगल ऑफ रिपोज, ये सारी स्टडीज हमने स्टडी किया था। ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द solubilization and dissolution. Thank you.